Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear learners, here we will start chapter number 3 of your book. And the name of the chapter is Landforms and Life. This is a chapter name. So, in this chapter, what we have to discuss? My dear learners, in this chapter, we have to see about landforms. Okay, we have to see about landforms. So we will see about different landforms, like land in the category of landforms we have to see about mountains. And in mountains, how the life is it, how the people can able to survive there. Okay, what are their vegetations that we found in mountain areas. Next we will see about the plain areas. What are the plain areas and how the people live in that areas. And then we will see the plateau areas, and in plateau areas how the people can able to survive. Okay, so in the mountain, in the plain, and in the plateau areas, how the people can able to survive their manage their life, and what are the flora and fauna that is there in these landforms. Okay, so here we will see about different landforms that is there in our world. Okay, so let's start this chapter number 3. So let's start it. We live on land. Land, as you may have noticed, has many forms and features. Its appearance changes a lot from one region to another regions. Suppose that we are traveling by road from the regions known as Chota Nagpur in Jharkhand, reaches Lucknow in Uttar Pradesh, and go to the Nainital in Uttarakhand. As we can see, when we move from one place to another place or one city to another city, their landform also change. Like in the Nainital in Uttarakhand, you see very beautiful mountains and all. In the Chota Nagpur area, we can see the plateau areas. Okay, and if I talk about in Uttar Pradesh, Lucknow, I can see the plain, very fertile areas with lots of rivers that flow in it. Okay, so these are some different types of landforms we can able to see when we cross from one state or one city to another city. On the way, you will see very different landscapes. In fact, you will encounter 3 major landforms which we will now explore. Basically, there are 3 major, or we can say major types of landforms that is there. First is mountain, second is plains, and the third one is the plateaus. These are the 3 types of, basically 3 types of landforms that is there. Okay, so let's start. This drawing illustrates 3 landforms, mountains in the background, 2 of them snow-capped. See, this is a figure in which we can see the mountains, and in which we can see the 2 mountains that have snow in it. So they are snow-capped mountains. Okay, and the rest of the mountains, they do not have the snow. Okay, अब हम बात करते हैं a plateau on the left and the plain in the foreground with a river emerging from the mountains. अब प्लेन एंड प्लेट्यू एरियाज कैसे हो रहे हैं? देखिए, अब यहाँ पे माउंटेन से जो रिवर आ रहे हैं, जहां जहां ये रिवर आई, ये देखो इस साइड वाले ये जो एरियाज है, ये प्लेन एरियाज में आ जाएंगे. ठीक है, और ये वाला जो एरिया आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ऊपर की साइड उठा हुआ है, ये है ना, तो ये हो जाता है प्लेट्यू एरिया. तो इसमें आपको बस ये दिखाया हुआ है कि माउंटेन एरिया, माउंटेन्स वाला एरिया, प्लेन एरिया एंड प्लेट्यू एरिया दिखता कैसे है. ठीक है, तो ऊपर की साइड आपको माउंटेन एरिया दिख गया, फिर प्लेट्यू एरिया एंड देन उसके बाद प्लेन एरिया. ठीक है, ये 3 टाइप के आपके डिवीजन है. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लिखा है, a landform is the physical feature on the surface of the planet Earth. So landform क्या है बेटा? फिजिकल फीचर है. फिजिकल फीचर है. फिजिकल फीचर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्या चीज? यहाँ पे आपने प्लेन एरियाज के बारे में पढ़ रहे हैं, जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे. माउंटेन्स एरियाज, कौन कौन सी जगह है जहाँ माउंटेन्स है, कौन कौन सी जगह है जहाँ प्लेन एरियाज है, ये सब. So landforms takes shapes over millions of years and have a significant connections with the environment and life. हमारा ये जो landforms है, ये आप देखते होंगे, ये डिपेंड करता है कि वो अलग अलग जगहों के अलग अलग टाइप्स के landforms एंड वहां पे आपको वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगा. So they can broadly be divided into 3 categories: mountains, plateaus and plain. These landforms have different climates and are the home to variety of flora and fauna.
हमने डिस्कस किया। यहाँ पे टेम्परेचर वाइज, फ्लोरा फौना वाइज यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। Human have adapted to all the landforms, but the number of the people living on different kinds of landform varies throughout the world. तो चलिए फिर बेटा हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले लैंडफॉर्म से और उसको पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेटा माउंटेन। क्या नाम है? माउंटेन। देखते हैं माउंटेन क्या है, कितनी हाइट होती है, वहां पे किस तरीके से लोग रहते हैं, वहां पे कौन कौन से फ्लोरा फौना पाए जाते हैं, ये सब चीजें। ठीक है। So mountains are landforms that are such higher than the surrounding landscapes. अब mountains हमें पता है इनकी हाइट क्या होती है, लंबी होती है। They are higher. Okay. They can be recognized by a border base, steep slope and a narrow summit. So ये जो आपके mountains होती है broad base के होते हैं, steep slope होता है इनका and narrow based होता है। आपने देख रहे हो ये जितने भी mountains हैं इन सबकी shapes अलग अलग है। कोई थोड़े broad है, कोई थोड़े steep में है, कोई थोड़ा स्लोपी में है ना। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे इनको हाईलाइट भी किया हुआ है। तो ये है इनके फीचर्स। ओके। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो ऑल्सो। कुछ माउंटेन स्नो से कवर है। एट लोअर ऑल्टीट्यूड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल, द स्नो मेल्ट्स एवरी समर एंड टर्न्स इनटू वाटर दैट फीड्स रिवर। अब यहाँ पे जो व्हाइट कलर के कैप वाले आपको दिख रहे होंगे माउंटेन्स, इसमें क्या है बेटा? स्नो है। अब ये स्नो क्या होती है, समर सीजन के टाइम पे मेल्ट्स होगी और ये यहाँ पे इससे निकलेगी क्या? रिवर्स। इसका पानी रिवर्स में जाएगा। ठीक है। सो एट द हाई ऑल्टीट्यूड्स द स्नो मे नेवर मेल्ट्स, लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप। ऑफ कोर्स जहाँ पे थोड़ा सा इतनी ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे माउंटेन्स नहीं है वहां की तो स्नो मेल्ट हो जाती है, बट जो बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड के माउंटेन्स है वहां पे स्नो नहीं पिघलती है ना। तो वहां वो पहाड़ आपको बिल्कुल वाइट ही दिखेंगे। सो अदर हाईलैंड्स विद अ लोअर हाइट, लेट स्टीप स्लोप एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स। अब हिल्स के शेप क्या होती है? देखिए अब ये पहले हमने माउंटेन्स का देखा था। माउंटेन्स क्या होते हैं? जिनके ब्रॉड बेस होते हैं, स्टीप स्लोप होती है एंड नैरो समिट होती है, दे आर माउंटेन्स। बट हिल्स क्या होते हैं? एक तो वो छोटे होते हैं माउंटेन से, सो दे आर लोअर हाइट और लेस स्टीप स्लोप। इनका हाइट छोटी होती है, स्लोप इनका कम होता है, माउंटेन्स बड़े होते हैं। ठीक है। तो ये है हमारी हिल्स। अब यहाँ देखो एक स्केल आपके सामने दिया हुआ है, ये आपको इंडिकेशन दिखा रहा है कि यहाँ पे जितने भी आपको माउंटेन्स दिख पा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी माउंटेन्स आप देख पा रहे हो इन सबकी हाइट डिफरेंस है ना। कोई बहुत छोटा है, कोई बड़ा, फिर कोई बड़ा, फिर कोई बड़ा। ये स्केल में आपको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है। ये एक नॉर्मल स्केच बनाया है। सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन्स आर grouped in mountain ranges such as the Himalaya in Asia, the Alps in Europe and the Andes in the South America. ये कुछ माउंटेन रेंजेस है। जैसे अगर एशिया में बात करें तो वो रेंजेस मींस चेन ऑफ माउंटेन्स, तो एशिया रीजन में बात करें तो वो हिमालयस है। अब यूरोप में बात करें तो वो कौन से माउंटेन्स की रेंज होती है, माउंटेन्स की चेंज है वो आल्प्स एंड एंडीज माउंटेन रेंज आपको मिलेंगे साउथ अमेरिका में। सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। कुछ ये जो माउंटेन्स की चेन है ये काफी लंबी भी होती है। ठीक है। तो ये अलग अलग जगह के अलग अलग टाइप्स के माउंटेन्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। So Mount Everest between the Tibet, China and the Nepal, and the Kanchenjunga between Nepal and the India state Sikkim are the two highest peak of Himalayan range. So ये दोनों रेंज, दोनों peaks, Mount Everest and Kanchenjunga, ये दोनों के दोनों हमारी highest peaks होती है। कौन से रेंज की? हिमालयन रेंज की। और हिमालयन रेंज कहाँ है? एशिया में। गुड, वेरी गुड। माउंट Aconcagua in South America is the highest peak of Andes. अगर कोई आपसे पूछे एंडीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है माउंट अकांकोगुआ, जो कि आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में। माउंट किलिमंजारो इज इन द ईस्टर्न अफ्रीका, इज एन आइसोलेट माउंटेन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी रेंज। ये जो है आपका माउंट किलिमंजारो, ये किसी भी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है जो अफ्रीका में है। ये कहाँ पे मिलता है? ईस्टर्न अफ्रीका में। ठीक है। और ये कोई भी रेंज का पार्ट नहीं। जैसे अभी हमने रेंज पढ़ी ना, एशिया में रेंज थी हिमालयन रेंज। ठीक है। तो ये जो माउंट किलिमंजारो है जो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, ये किसी भी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है।
माउंट बेलिक्स इन वेस्टर्न यूरोप इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ आल्प्स। तो आल्प्स के माउंटेन सबसे हाईएस्ट है माउंट ब्लास। ओके, नेक्स्ट है अनामुली इन केरला एंड ऑल्सो नोन एज अनीपी। क्या कहते हैं? जो कि कहां पे है? केरला में है। ठीक है, दैट इज अनामुली। इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द साउथ इंडिया। माउंटेन with tall and sharp peak lies in Himalayas are relatively younger, which means that they are formed recently in the earth history, but that is still millions of years ago. See, हिमालयंस को हम यंग माउंटेन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑफ कोर्स नए नए हम कह सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कल परसों की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू एज कंपेयर टू अदर रेंजेस ये न्यू है हिमालयंस। ओके, तो shorter and more rounded mountains and hills like the Aravalli ranges are much older and have been rounded by erosion. तो आपने इंडिया में तो पता ही है सबसे पुरानी रेंज है हमारी अरावली रेंज। ओके, तो sometime as with the Himalayas upliftment as well as erosions continue to this day also. देखिए जितने भी माउंटेन्स जो भी हमारे हैं, इवन हिमालय है, इसकी भी हाइट बढ़ती और कम। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा इसमें इरोजन हो रहा है ना, एंड अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं जो हिमालयंस की हाइट भी बिल्कुल एक्यूरेट हम नहीं मेजर कर पाते। ठीक है, तो अब देखते हैं माउंटेन एनवायरमेंट कैसा होता है। तो माउंटेन्स आपको पता चल गए कि कौन कौन से माउंटेन रेंज कहाँ कहाँ है। ठीक है, एशिया में कौन सी रेंज है, साउथ अमेरिका में कौन सी रेंज है, एंड किलिमंजारो कोई रेंज का पार्ट है? वेरी गुड, नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस टॉपिक से। अब पढ़ते हैं बेटा माउंटेन एनवायरमेंट क्या होता है, माउंटेन में कैसा एनवायरमेंट होता है। ओके, लेट्स डिस्कस। So mountain slopes are often covered with a type of forest called mountain forest. अब of course mountain है तो इसका नाम भी इसी से हो गया mountain forest, a type of forest that grows in the mountainous regions where coniferous trees such as pine, spruce, देवदार, मतलब यहाँ पे जो भी आपको ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे इसकी हाइट, इसकी जो शेप होगी कॉनिकल होगी। ठीक है, और इनके फॉरेस्ट जो होंगे जो आपको माउंटेन्स में मिलेंगे तो इनका नाम होगा माउंटेनियन फॉरेस्ट। ओके, सो दीज कॉनिफर ट्रीज ग्रो टॉल एंड कॉनिकल विथ थिन पॉइंटेड लीव्स। इनकी लीव्स थिन कॉनिकल शेप रहती है। एट हायर ऑल्टीट्यूड द ट्रीज गिव वे टू ग्रासेस, mosses are small green plants without flower or true roots, often spreading in a cushiony-like cover. And lichens are plant-like organisms that generally cling to rocks, walls or tree. So ये सब आपको इन्हीं regions में मिलेंगे, mountainous region में grasses, mosses, okay, and lichens, ये सब आपको यहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे deep forest, flowering rivers, lakes, grassland and caves in the mountains are home to diverse flora. For instance, the golden eagle and the Peregrine falcon, the Canadian larynx, the snow leopard and ibex, the Himalayan tahr, the mountain hare, the yak and the grey fox and the black bear, all are the, we can say, home to these forest, जहाँ पे आपको ये जितने भी एनिमल्स के नेम्स लिए आपको कौन से एरियाज में मिलेंगे, हाइटी पे, हाई ऑल्टीट्यूड्स में, और वी कैन से माउंटेन फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है, तो आपने ये जितने भी ब्लैक बियर, आपने याक, ये सब कहाँ देखे होंगे? ये देखे होंगे आपने माउंटेन एनवायरमेंट में। तो ये इनकी पिक्चर्स लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे के सारे है आपका आइबेक्स, ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, याक, ग्रे फॉक्स एंड गोल्डन ईगल। ओके, अब ये जो छोटे बॉक्स में आपको कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लिखी होती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ ही लिखा है कि गंगा इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑरिजिनेटेड इन द हिमालयन। सो गंगा, हम बात करें इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। कौन सी? गंगा। इन इंग्लिश गंगा इज ऑल्सो used, never
It is nearly almost 2,500 kilometers long. These rivers are numerous tributaries, that is other river joining it. So इस river में बहुत सारी tributaries आके मिलती हैं, ठीक है. Some of them like Yamuna and Ghagra also originated in the Himalayas. Other like the Son and Son originated from the Vindhya range to the south of the Ganga plain. Okay, तो यहाँ पे ये जो चीजें लिखी गई है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको यहाँ पैसिफिक ओशंस होगा, गंगा रिवर क्या है, ये सारी चीजें. सो आई एम होपिंग सो आपको इतनी चीज क्लियर हो गई कि क्या है माउंटेन और यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं. क्लियर? ओके. अब देखते हैं लाइफ इन माउंटेन. यहाँ पे लाइफ कैसी होती है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, ठीक है. So the mountain terrain are pieces or stretch of land from the point of view of its physical feature is usually rugged or rough and has steep slope. यहाँ पे कैसा होता है, steep slope रहता है, rough and rugged and rough होते हैं ये, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से होते हैं. और यहाँ पे लाइफ, यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. So this means that regular farming can only be practiced in some valleys, a lower area between the hills or mountains, often with a river or streams flowing through it. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इतना vegetations वगैरह नहीं होता. क्या नहीं होता? Vegetations. So cultivation is practiced on the slope by cutting step into the. दिस इज नोन एज टेरेस फार्मिंग. देखिए टेरेस फार्मिंग ये माउंटेन एरियाज में ही होती है. जैसे टेरेस पे मतलब माउंटेन्स के स्लोप को कट कर करके यहाँ पे फार्मिंग किया जाता है. दे आर नोन एज टेरेस फार्मिंग. व्हाट दे आर नोन एज टेरेस फार्मिंग. सो इन मेनी माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हर्डिंग इज द प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर. तो ज्यादातर लोग यहाँ पे माउंटेन्स में रहने वाले लोग एग्रीकल्चर करना पसंद नहीं करते हैं. वो क्या पसंद करते हैं? हर्डिंग करना. एग्रीकल्चर करना बहुत डिफिकल्ट होता है. अब सोचिए माउंटेन एरियाज में चीजों को लेके जाना, लेके आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो टूरिस्ट इज ऑफन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स. तो माउंटेन्स में जो लोग रह पाते हैं, वहां की स्टेट की कैसे इकोनॉमी चल पाती है? ड्यू टू टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म ऐसी जगहों पे आना बहुत पसंद करते हैं. सो द क्रिस्प माउंटेन एरिया एंड सीनरिक ब्यूटी अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट. Some tourists also go to the mountain for sports such as skiing, hiking, mountaineering, and paragliding. For many centuries, people have also traveled to these uplands for pilgrimage to holy sites, but an excessive inflow of visitors can also put the fragile mountain environment under pressure. It is often difficult to find the right balance. ऑफ कोर्स यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, लोग यहाँ पे आना भी बहुत पसंद करते हैं, पर लोग ना फिर क्या करते हैं, वहां के इन्वायरमेंट को खराब करने लग जाते हैं, गंदगी मचाने लग जाते हैं, जो कि वहां के इन्वायरमेंट को और ज्यादा डिग्रेड कर देता है. ऑफ कोर्स वहां के स्टेट को चाहिए कि वहां पे टूरिज्म आए, बट आप इतना होना चाहिए कि आप कहीं जा रहे हो तो यू डोंट हैव टू पोल्यूट दैट स्टेट. ओके, तो ये था माउंटेन्स के बारे में. और ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है माउंटेन के बारे में. बचेंद्री पाल कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था? सो बचेंद्री पाल स्टार्ट क्लाइमिंग माउंटेन फ्रॉम अ यंग एज एंड लेड मेनी वुमेन्स क्लाइमिंग एक्सपेडिशन. शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1984 and she was awarded with Padma Shri the same year, पद्म भूषण इन 2019. सो 2019 में उनको पद्म भूषण मिला था एंड पद्म श्री उनको 1984 में मिला था, जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की क्लाइंब किया था. और वो फर्स्ट इंडियन लेडी बनी थी जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सोचो चढ़ा था, जो हमारी हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की. ओके, एक और वुमेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज अरुणिमा सिन्हा. Lost a leg in an accident when she was in 31. With Bachendri Pal encouragement and training, she managed to climb Mount Everest in 2013 and went to climb the highest peak of every continent, including Mount Wilson in Antarctica. She was awarded with Padma Shri in 2015. देख रहे हो, 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था विद द हेल्प ऑफ बचेंद्री पाल. उसके बाद उन्होंने हर कॉन्टिनेंट की जितनी भी हाईएस्ट पीक थी सबको क्लाइम किया गया है. 2015 में उनको पद्मश्री भी मिला था बिकॉज शी डिजर्व
देख रहे हो कितनी हार्ड वर्क डेडिकेशन इन सब में है, ठीक है। Next, many traditional communities around the world consider mountain to be sacred places and worship them. Mount Everest, the highest mountain in the world at 8849, has many names. Tibetans call Cholam again. Mount Everest, the highest mountain in the world at 8849 meters, has many names. Tibetans call Cho Mol Lungma, which means mother goddess of the world, and worship the mountain as such. Nepalis call Sagar Matha, meaning goddess of the sky. Similarly, Mount Kailash in Tibet is held sacred by followers of Hinduism, Buddhism, Jainism, and Bon. Such references of mountain summits is also found everywhere in India as well as in other part of the world. So आपने देखा इन दोनों के में और ये देखा कि माउंटेन्स में किस तरीके की अपने स्ट्रगल्स रहते हैं। टेरेस फार्मिंग होती है, यहाँ के लोग हर्डिंग ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू फार्मिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया माउंटेन। अब हम सेकेंड लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, प्लेट्यूज। देखते हैं प्लेट्यूज क्या होता है। प्लेट्यूज एक होता है जो हमारा जो लैंड एरिया से थोड़ा सा उठा हुआ एरिया, मतलब अगर ये लैंड एरिया तो ये होगा हमारा प्लेट्यू, ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ होगा, ऐसे बिल्कुल फ्लैट नहीं हो, उठा हुआ होगा, ठीक है। सो अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। व्हाट्स दैट? एलिवेटेड, थोड़ा सा उठा हुआ, ओके। इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। तो सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा उठा हुआ होता है ये। A plateau may have one or more slides with steep slope. अच्छा, कहीं कहीं पे आपको इसके steep slope भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। So the height of plateau often varies from few hundred meters to several thousand meters. Plateau like mountain may be young or old. So plateau या तो young हो सकता है, old भी हो सकता है, but जो हमारा हिमालय है वो young है, ठीक है। So the Deccan Plateau in India is one of the oldest plateau. देख रहे हो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू का नाम याद रख लीजिए, डेक्कन प्लेट्यू है जो इंडिया में है। द तिब्बतन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, अबाउट हाइट ऑलमोस्ट 4000 to 6000 मीटर अबव द मेन सी लेवल। तो तिब्बतन प्लेट्यू वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, और इंडिया की बात करें ओल्डेस्ट प्लेट्यू वो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। अब आई वांट अ क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल, आई वांट अ आंसर फ्रॉम यू ऑल कि हमारा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया की कौन सी है? कमेंट डाउन बिलो, अभी बताया है। देखते किस किस को याद है, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है एक एक वर्ड, क्योंकि यहाँ जो लिखा है ना एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, इंडिया का ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, कितनी हाइट होती है, एलिवेटेड लैंड को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है जी। आगे, प्लेट्यू आर very useful because they are rich in mineral deposits like mountains. Plateau are rich in mineral deposit. They have been called storehouse of minerals. तो plateau में बहुत सारे बेटा minerals पाए जाते हैं, इसलिए plateau को storehouse of minerals भी कहा जाता है, ठीक है। As a result, mining is a major activity on plateau where many of the world largest mines are found. यहाँ पे आपको ना क्या करते हैं, माइनिंग किया जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी माइंस हैं, यहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अगर हम ईस्टर्न प्लेट्यू की बात करें, ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू, यहाँ पे डायमंड्स बहुत होता है, तो यहाँ डायमंड की माइनिंग की जाती है, गोल्ड एंड डायमंड। किसकी बेटा? गोल्ड एंड डायमंड की। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीशियम आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप अगर इंडिया की बात करें तो प्लेट्यू एरियाज में आपको आयरन, कोल जैसी चीज मिलेगी, और ईस्टर्न अफ्रीका प्लेट्यू में आपको गोल्ड एंड डायमंड मिलेगा। तो आपको ये तो समझ आ गया प्लेट्यू वाला एरिया बहुत मिनरल एंड बहुत मिनरलिक होता है, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो छोटी चीज है ये इंपॉर्टेंट है। हम इस देखिए कभी कभी होता है कि छोटे छोटे बॉक्स मिस हो जाए, तो कोशिश करनी है, वैसे हमने जितने भी चैप्टर में छोटे हो चाहे बड़े बॉक्स, हमें सारे रीड करने हैं।
क्योंकि इसी में ही सारी की सारी जो चीजें आपके एग्जाम्स में छोटी छोटी वन वर्ड एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो इसी से ही होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है बेटा, द तिब्बतन प्लेट्यू हैज एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ 4500 meters, which explain why it has been nicknamed the roof of the world. प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है just because of this height. From east to west, it is nearly 2500 kilometers long. The distance from चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी, देख रहे हो इतना बड़ा है तिब्बतन प्लेट्यू। अगर हम चंडीगढ़ पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक पूरा हम करें, लाइन ड्रॉ करें या डिस्टेंस देखें, इतना बड़ा है तिब्बतन प्लेट्यू। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट्स द लॉन्गेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड. Next, the Deccan Plateau of the central and the south India is one of the oldest plateau in the world, formed through the volcanic activity millions years ago. यहाँ पे जो इंडिया का बात करें, डेक्कन प्लेट्यू कैसे फॉर्म हुआ था, क्यों कैसे हुआ था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, इसके इरप्शन से ये बना था। क्या बना था? प्लेट्यू बना था, ठीक है। चलिए अब दो चीजें समझ में आई, तिब्बतन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू. Next, the plateau, which I'm talking to you, the plateau environment. Okay, so we are singing the plateau environment is very diverse across the world. प्लेट्यू का environment बहुत diverse होता है, यहाँ बहुत minerals मिलते हैं, बहुत vegetation है. Many plateau have a rocky soil which makes the less fertile than plains and therefore less favorable to farming. See, यहाँ पे ना जमीन इतनी फर्टाइल नहीं होती क्योंकि सैंडी सॉइल है, रॉकी सॉइल है, यहाँ पे वेजिटेशन होगा नहीं, एज कंपेयर टू प्लेन एरियाज के यहाँ वेजिटेशन कम होता है क्योंकि प्लेन एरिया में तो फर्टाइल सॉइल है, यहाँ नहीं है. An exception is that of lava plateau that is formed through the volcanic activity as they often have a rich black soil. देखिए जिस प्लेट्यू में वॉल्केनो इरप्ट हुआ है वहां पे रिच ब्लैक सॉइल होती है, वहां कल्टीवेशन करना पॉसिबल होता है, ठीक है. सो प्लेट्यू आर ऑल्सो होम टू मेनी स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल्स. सो प्लेट्यू एरियाज में आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी मिलेंगे, ठीक है. सो द विक्टोरिया फॉल्स एंड द Zambeze river in the southern African, the Hundru falls in the Subarlekha river in the Chota Nagpur plateau, and the George fall on the Saravati river on the western Ghat are the few example of some waterfalls. तो ये कुछ example, जैसे विक्टोरिया फॉल आपको मिलेगा, ठीक है, हुंड्रू फॉल मिलेगा, जॉर्ज फॉल मिलेगा, ये सब वाटरफॉल्स मिल जाएंगे आपको कहाँ पे? प्लेट्यू एरियाज में. द खोरकलीकी फॉल्स ड्रॉप डाउन 340 meters फ्रॉम चेरापूंजी प्लेट्यू एट मेघालय. सो ये मेघालय में है. तो ये हो गया हमारा प्लेट्यू की जितनी भी चीजें क्लियर. ओके, सो माउंटेन एंड प्लेट्यू क्लियर हुआ आपको? सारी चीजें क्या होता है, कैसे होता है? ओके, सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस दिस. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट प्लेन्स, ठीक है, प्लेन एरियाज के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो यहां तक आई एम होपिंग सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी. सो माय डियर लर्नर्स, फॉर दिस क्लास दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. I will meet you in your next class. Till then, keep learning, keep revising all these things. In the next class, I will ask you. Okay? So that's all. Have a good day. Bye-bye.